फ्रेंड्स, सो हाउ यू ऑल आर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का सॉल्यूशन। मैंने एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो तुम लोग वहां से जाकर देख सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन विच कंटेन 120 ग्राम NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन ये है। पहले हमें मास ऑफ NaOH जो गिवन है वो लिख देंगे और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो। उसके बाद जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है उसको लिखकर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद हम मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन। तो इसका डिफरेंस ये है। लायोफिलिक कोलाइड्स का है, फर्स्ट है डिस्पर्ज फेज हैज़ हाई एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम, और लायोफोबिक का कोलाइड्स का है डिस्पर्ज फेज हैज़ लो एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। सेकेंड, दे आर इजली फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग और ऑन हीटिंग। सेकेंड, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। थर्ड वन इज दे आर रिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। Now question number 7th, bleaching of flowers by Cl2 is permanent while SO2 is temporary. Why? तो इसका रीज़न यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 7th, greater the intermolecular forces, greater the boiling point. HF has strong intermolecular forces due to hydrogen bonding between H and F, while HCl have small intermolecular forces. That's why boiling point of HCl is less than that of HF. So here is the reason for it. Now question number 8, H2O is liquid while H2S is gas. Why? तो इसका रीज़न ये है, जो H2O has oxygen as the central atom, oxygen has a smaller size and higher electronegativity as compared to sulfur. Therefore, there is extensive hydrogen bonding in H2O. Molecule in H2S are held together only by weak van der Waals forces of attraction. Hence, H2O exists as a liquid while H2S as a gas. That's the main reason behind it. क्वेश्चन नंबर 9th में EDTA का फुल फॉर्म मंगा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, और जो यूज़ है इसका, इट इज़ यूज इन मेडिसिन टू प्रिवेंट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम क्लॉटिंग एंड टू रिमूव कैल्शियम एंड लीड फ्रॉम द बॉडी। एंड नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो जो पहली रिएक्शन है वो है कार्बोलामाइंस रिएक्शंस। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है यहाँ पर। The carboline reactions test used for detection of primary amines. In this reaction, the analyte given compound is heated with alcoholic potassium hydroxide and chloroform. If a primary amine is present, the isocyanide carbolamines is formed, which gives unpleasant smell. Reaction यहाँ पर है CH3CH2NH2 plus CHCl3 plus 3COH, which is alcoholic solution, and there is some warmness also given here. Then after CH3CH2, then C plus 3KCl plus 3H2O. Now there is a diagrammatic representation of this reaction. Now mustard oil reaction, question number 10 B part. Mustard oil reaction, when primary amines are treated with carbon disulfide CS2, an alkyl dithiocarbamic acid is formed, which an subsequent treatment with HgCl2 gives an alkyl isocyanate, और इसकी रिएक्शन ये है। अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA. DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. And DNA contains cytosine and thymine as pyrimidine bases and guanine and adenine as purine bases. और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसमें RNA contains cytosine and uracils as pyrimidine bases and guanine and adenine as purine bases. DNA has double stranded alpha helix structure and RNA has single stranded structure. DNA occurs in nucleus of the cell while RNA occurs in the cytoplasm of the cell. Now we move forward towards question number 12. What do you mean by antibiotic and sulfur drugs? तो जो एंटीबायोटिक है उसकी डेफिनेशन है,
They are medicines that fight bacterial infections in people and animals. They work by killing the bacteria or by making it hard for the bacteria to grow and multiply. Antibiotics can be taken in different ways, orally, by mouth. This could be pills, capsules or liquids. और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लिंडामाइसिन एंड डीऑक्सीसाइक्लाइन। फिर उसके बाद सल्फा ड्रग्स। तो सल्फर ड्रग्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सल्फोमाइड, एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग द सल्फेनलाइड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ग्लाइब्यूराइड, सल्फामेथेनाजोल, ट्राइमेथोप्रिम। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फ्रेंड्स, अगर तुम लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो इसका वीडियो मैं पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, तो तुम लोग वहाँ पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ में मैं पासवर्ड डालूँगा, तो पासवर्ड इसी वीडियो में उसको मिल जाएगा, तो तुम लोगों को सर्च करना पड़ेगा, मैं तुम लोगों को कमेंट में बताऊँगा नहीं। सो देन डोंट आस्क फॉर पासवर्ड देयर। एंड द क्वेश्चन 13 इज़ राइट एंड प्रूव रॉल्स लॉ एंड राइट डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो हम यहाँ पर और वाला करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन वाला। तो इसका सॉल्यूशन ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, या वी जस्ट स्किप आउट 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट में है, पीडीएफ के लास्ट में मैं बताऊंगा। अभी पहले क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो इसका सॉल्यूशन ये है। ऑन ऑक्सीडेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड, कीटोन एंड कीटोन विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फर्स्ट है C4H9OH, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये फर्स्ट डिग्री टर्शियरी अल्कोहल है जो कि गिव कर रहा है CH3 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 एंड CHO। फिर ऐसे ही सेकेंड डिग्री में हमको जो प्रोडक्ट है वो है CH3CO CH3 CH3, एंड जो थर्ड डिग्री टर्शियरी अल्कोहल है उसमें हम लोगों को मिल रहा है CH3CO CH3। और अब हम डिहाइड्रोजनेशन की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर कॉपर की प्रेजेंस में जब टर्शियरी अल्कोहल हो और 300 डिग्री टेम्परेचर मिलता हो तब हमको CH3 CH3 CH2 CHO मिलेगा प्रोडक्ट। बाकी सेकेंड डिग्री टर्शियरी अल्कोहल में CH3CO CH2 CH3 मिलेगा, एंड थर्ड डिग्री टर्शियरी अल्कोहल में CH3 डबल बॉन्ड विथ CH3 एंड C। नाउ वी मूव टुवर्ड 16 क्वेश्चन। हाउ कैन यू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हम और वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो जो 16 का ए वाला पार्ट है, एसिटिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन ये है, एंड एसिटामाइड की रिएक्शन यहाँ पर कुछ ये है, एंड थर्ड वन। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स 17th क्वेश्चन विच इज़ एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट, हुंडसीकर रिएक्शन। तो जो हुंडसीकर रिएक्शन है वो कुछ यहाँ पर मेंशन है इस तरह से, दैट व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, हेलोएल्किन्स आर फॉर्म्ड, इट इज़ कॉल्ड हुंडसीकर रिएक्शन। जो रिएक्शन है वो है R बॉन्ड COOAg प्लस Br2 in the presence of CCl4 catalyst, and the product is formed R bond with Br plus CO2 plus AgBr. Example, on heating silver propionate with bromine, ethyl bromide is formed, और इसकी रिएक्शन यहाँ पर है। Now Wurtz reaction. तो when alkyl halide is heated with sodium metal in the presence of ether, then higher alkane is formed. This reaction is known as Wurtz reaction. और रिएक्शन यहाँ पर ये है, और जो इसका एग्जांपल है ये भी यहाँ पर मेंशन है, दैट ब्यूटेन इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड Na इज ईथर, और इसकी रिएक्शन ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मॉलिकुलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट देयर यूनिट ऑल्सो। तो यहाँ पर जो 18th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये यहाँ पर है, दैट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है, एंड उसके बाद उसका फॉर्मूला, और जो लास्ट में इसकी यहाँ पर हमने ऐसा यूनिट मेंशन की है। हैंस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज कंडक्टेंस ऑफ 1 cc ऑफ इट्स वॉल्यूम, इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। नाउ मोलर कंडक्टिविटी is given here, and its SI unit is ohm inverse centimeter square mole inverse. Third one is equivalent conductivity, and the SI unit of it is ohm inverse centimeter square equation inverse.
Now question number 19 solution is difference between lanthanide and actinide. ये लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है तो इसलिए थोड़ी बड़ा हो गया। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि सॉल्यूशन कंप्लीट है। यहाँ पर जो 7th पॉइंट है यहाँ पर इसमें मेंशन है मोस्ट ऑफ द ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड कैटायंस आर कलरलेस एंड 7th वन इज मोस्ट ऑफ द ट्राई पॉजिटिव एंड टेट्रा पॉजिटिव एक्टिनाइड कैटायंस आर कलर्ड। नाउ एज वी लेफ्ट द 14th क्वेश्चन which is the difference between molecular reaction and order of reaction। तो इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखा है that number of molecules atoms or ions taking part in a reaction is called molecularity of reaction। order of reaction का है number of molecules atoms or ions of reactants on which rate of reaction depend is called order of reaction। second, it is always equal to number of molecules taking part in reaction and in order of reaction it is not always equal to number of molecules taking part in reaction। third, it is always an integer number and never negative or zero, it may be fractional zero or negative number। जो फोर्थ वाला है उसका है it suggests the number of molecules taking part in a step of the reaction, it is an experimental number and depends on concentration of reactants। तो friends, now the solution ends। friends, hope you like the video and get some help from it। if you want the PDF of it then you have to just join the Telegram group and get the solution PDF। so thanks for watching, have a good day, bye।